ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम त्रयोविंश अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय शिशुमार चक्रर वर्णना करा जायछि। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। यार पूर्व अध्याय ग्रह मानकर स्थिति और तांकर गति विषय वर्णना करा जायथिला। तेणु अनेक गभीर तत्व आम शास्त्र गुड़िक उपलब्ध अच्छी, किंतु आमे से गुड़िक अध्ययन न करने द्वारा शास्त्रर महत्व गुरुत्व सत्यता आज आम जापारना। तेणु निश्चय भाव में प्रतिदिन भागवत महापुराण गोटे गोटे अध्याय श्रवण करने चेष्टा करूँ। फल आपण ज्ञानर अधिकारी होगा सहित अनेक सत्यता उन्मोचन करने समस्त हो पारे। तेरे आसतु आरंभ करवा। त्रयोविंश अध्याय। त्रयोविंशरे ध्रुवस्थान शिशुमार चक्रवर्णन। श्रीशुकवाच एथुअन्तरे हि राजन त्रयोदशलक्ष योजन ज्येष्ठान विराजयित हि विष्णुर स्थान ताकु कहि जहि परम भागवत ध्रुवौ तान पादसूत अछन्ति कश्यप संगते कालज स्थिर सेवा महते कल्पे पर्यंत सुख भोले प्रभु को भजन्ति निश्चले प्रभु को भजन्ति निश्चले से भागवत कल्पे पर्यंत सुख भोले प्रभु को भजन्ति निश्चले से भागवत ध्रुववाणी पूर्वे कहिचु नृपमणि ग्रहण क्षत्र ज्योतिर्गण ध्रुवर सहित राजन ईश्वर सृष्टि अनुसारे एवेदी सही से लोक हरे कालचक्रर भ्रमे जान बेगे भ्रमंती अनुक्षण मेरी रे पशुगण जेने सकले भ्रमंती देशने मंडल आकार रे तही जे जहा स्थान रे भ्रमई नक्षत्र ग्रह आदि जेते एही प्रकारे से समस्ते कालर चक्रे से भ्रमण बाहर अंतरे भ्रमीण कल्पांत जाए से प्रकारे अछन्ति विविध व्यवहारे शून्यमंडले मेघमाले जेन्हे जाती वायु बले जेन्हे नादी पक्षी माने पवन बले थांती शून्य कर्म अधीने ज्योतिर्गणे शून्य रे भ्रमंती ते सहने प्रकृति पुरुषर भोग तहि रे हुअन्ति संजोग कर्म बंधन निमित्त रे पतन हुअन्ति भूमि रे एअनन्तरे नृपवर ए ज्योति चक्र शिशुमार एमंत करी केवनई कहिबा शुण मन देई जे प्रभु अखिल कारण वासुदेव जे भगवान ताहाक जोगर मूर्ति शरीर कुंडल आकृति अधोबदन ताहाकर पुछरे निवास अधोबदन ताहाकर पुछरे निवास ध्रुवर
ଲାଙ୍ଗୁଳେ ପ୍ରଜାପତି ବାସ ଅନଳ ଧର୍ମ ଯେ ସୁରେଶ ଧାତା ବି ଧାତା ପୁଛ ମୂଳେ ଶପଥ ଋଷି କଟିସ୍ଥଳେ ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ତ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଳ ଆକାର ସେ ଦେଇ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଗତେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଜିତ ଆଦି ଏ ଗଣ ବାମପା ଋଷେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୁନର୍ବ ସୁଜେ ପୁଷ୍ୟା ଦୁଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରେଣୀ ତହିଁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯେ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜେ ଅତି ଶୁଭ୍ରତରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଦେଶେ ଆର୍ଦ୍ରା ଓ ଶ୍ଲେଷା ସୁପ୍ରକାଶେ ଉତ୍ତର ଷାଢ଼ା ଅଭିଜିତ ସତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଘ୍ରାଣେ ସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଘ୍ରାଣେ ସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ରବଣା ପୂର୍ବ ଷାଢ଼ା ଦୁଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରେ ରହି ଧନିଷ୍ଠା ମୂଳା ବେନିଜନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ବେନିକନେ ମଘାଦି ଅଷ୍ଟ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ବାମ ସ୍ଥିରେ କ୍ରମେ ସ୍ଥିତ ମୃଗଶିରାଦି ଦକ୍ଷିଣରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ତବିକ୍ଷା ସ୍କନ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ଅଧରହନୁରେ ଅଗସ୍ତି ସମନ କ୍ରମରେ ସମନ ମାନେ ଯମ ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗାରକ ଶୋହେ ଉପସ୍ତେ ଶନିଶ୍ଚର ରହେ ଅଙ୍ଗାରକ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଦିତ୍ୟ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବସେ ବୃହସ୍ପତି କୁକୁଦ ଦେଶେ କୁକୁଦ ମାନେ ପିଠିର କୁଜ ହୃଦୟେ ନାରାୟଣ ସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନରେ ବସନ୍ତି ନାଭିରେ ଉଷନା ପ୍ରକାଶ ସ୍ତନରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ବାସ ପ୍ରାଣ ପାନେ ବୁଧ ବସେ ଗଳାରେ ରାହୁ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ସର୍ବଙ୍ଗରେ କେତୁ ସ୍ଥାନ ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ହେ ରାଜନ ରୋମମୂଳରେ ତାରାଗଣ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ନାରାୟଣ ଏ ରୂପ ସର୍ବଦେବମୟୀ ଯେ ଜନ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖି ସ୍ତବ କରେ ଅଶେଷ ପାପୁ ସେ ନିସ୍ତରେ ଏ ସ୍ତବ ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରିଣ ସ୍ତୁତି କରିବ ସାବଧାନ ନମଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୋକମୟ କାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାର ଦେହ ସକଳ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁହି ତୋପାଦେ ଆନନ୍ଦେ ନମଇ ଗ୍ରହରୁ କ୍ଷଜେ ତାରାଗଣ ସର୍ବାଧି ଦେବ ନାରାୟଣ ରୁକ୍ଷ ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ନର ସ୍ମରଣ করে নমস্কার অহরাতর পাপতার দহন হয়ে নৃপবর সে প্রভু স্বয়ং যোগেশ্বর অনাদি ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর তাহাঙ্ক চরণ কমলে ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ନିରନ୍ତର କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଦେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶିଶୁମାର ସଂସ୍ଥାପନଂ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର 28 ନକ୍ଷତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକଦେବ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର 13 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉପରେ ରହିଛି ଧ୍ରୁବଲୋକ। ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମପଦ କହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରମ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି, କଶ୍ୟପ ଓ ଧର୍ମ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରପୂର୍ବକ ଧ୍ରୁବକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଆପଣମାନେ
पूर्व जदि शुणी बा जानी ये ग्रुप्रे मध्य अच्छी से ध्रुव कथा एठी आलोचना करा जायछि बा ध्रुव कौटी रहंती से विषय कहुई जो माने कल्प पर्यंत रहिबे से माने एबे मध्य तांकरी आश्रय रहिछन्ति। ध्रुवलोकर प्रभाव मु आगरू चतुर्थ स्कंधरे कहि सारी सर्वदा जाग्रत रहिथिबा अव्यक्त गति भगवान काल जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण को निरंतर घुराई चली भगवान ध्रुवलोक को ही से सबर आधार स्तंभ रूपे नियुक्त करिछन्ति। तेणु यही ध्रुवलोक गोटे स्थान रे स्थिर रही सदा आलोकित होउछि। आपण माने देखिथिबे उत्तर आकाश रे ध्रुव तारा गोटे स्थान रे ही सर्वदा विराजित। तेणु ध्रुव तारा सबुबेले स्थिर। जेपरी खଳାରେ धान मलिया पई बलद मानकु मेरी खुंटरे छोटरू बड़ क्रमरे पघा बा दौड़ी द्वारा बंधा जाए एवं ता फलरे सेमानकु मेरी खुंट ठारू विभिन्न दूरतारे रखी मेरी खुंट चारि पाखरे चक्राकार रे घुरा जाए बा बेंगला पका जाए सेहीपरि दूर और निकट क्रमरे नक्षत्र और ग्रह मानकु एही कालचक्र रे नियुक्ति करा जायछि एवं ध्रुवलोक को ही मेरी खुंट करी वायु प्रेरणा रे कल्प शेष पर्यंत सेमाने ता चारि पाखरे विभिन्न दूरतारे रही घूरी चलती। जेपरी मेघ और बाजपक्षी माने निज निजर कर्म सहायता वायुर अधीन होई आकाश रे उड़ती ज्योतिर्गण मध्य सही प्रकृति और पुरुषर संजोग बशत निज निज कर्म अनुसार चक्राकार रे घूरती सिना पृथ्वी रे खसी पड़ती नाही। केही केही पुरुष भगवान जोग माया को आश्रय करी रहिथवा एही ज्योतिष चक्र को राशि तथा ग्रह मानकर गतिश चक्र को शिशुमार बा विराट जलजंतु विशेष रूप में वर्णना करती। सही शिशुमारटी कुंडली बांधि रही एवं तार मुह तलक लंबी ताहार लांज भाग में रही ध्रुवतारा लांजर मझे रही प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म लांजर मूल अछंती धाता और विधाता ताहार कोटि देश रे रहिछन्ति सप्तर्षि। एही शिशुमारर शरीरटी डाहाण पटक मोड़ी होई कुंडली बांधिछि। एपरि स्थिति रे रहिथिबा एही शिशुमारर डाहाण भाग रे रहिछन्ति अभिजित ठारू आरंभ करी पुनर्वसु पर्यंत उत्तरायण रे 14टी नक्षत्र एवं वाम भाग रे रहिछन्ति पुष्या ठारू आरंभ करी उत्तर आषाढ़ पर्यंत उत्तराषाढ़ पर्यंत दक्षिणायनर 14टी नक्षत्र हमर सर्वमोट 28टी नक्षत्र रहिछन्ति। वास्तव में शिशुमार कुंडली बांधि शोइथिले ताहार वाम और डाहाण उभय पार्श्व समान संख्यक अंग रही है। ठीक सेहीपरि उक्त शिशुमार चक्र रे मध्य उभय पार्श्व समान संख्यक नक्षत्र रहिछन्ति। एही शिशुमार पीठिरे अजबिथा बा मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नामक 3टी नक्षत्रर समाहार रही एवं उदर रे रही आकाश गंगा। राजन एहार अंटार डाहाण और बाम पटे यथाक्रमे पुनर्वसु और पुष्या नक्षत्र पछपटरे डाहाण और बाम गड़े आर्दा आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र डाहाण और बाम नासा रंध्र रही यथा अभिजित और उषाढ़ाषाढ़ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सेहीपरि डाहाण और बाम आखिरे रही श्रवणा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एवं डाहाण और वाम कानरे रही धनिष्ठा और मूला नक्षत्र मघा आदि दक्षिणायनर 8टी नक्षत्र वाम पार्श्वर पिंजरा अस्थिरे एवं विपरीत क्रम मृगशिरा आदि उत्तरायणर 8टी नक्षत्र उत्तर पार्श्व पिंजरा अस्थिरे रही शतभिक्षा और ज्येष्ठा एही 2 नक्षत्र यथाक्रमे डाहाण और वाम कांधरे अछंती। एही शिशुमारर थोमणी रे अगस्त्य तल हनुअस्थिरे बा थोड़ी रे नक्षत्र रूपे जम और मुखरे मंगल लिंगरे शनि एवं पीठिरे चूलरे बृहस्पति छाती रे सूर्य हृदय रे नारायण मनरे चंद्रमा नाभिरे शुक्र स्तनदय अश्विनी कुमारदय प्राण और अपान बुध गड़ारे राहु समस्त अंगरे केतु और रोम मानकर सकल तारागण रही। हे राजन यह ହେଉଛି भगवान विष्णुଙ୍କର सर्वदेवमय स्वरूप। प्रत्यह संध्या काल रे पवित्र और मौन होई
ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ हे समस्त ज्योतिर्गणकर आश्रय, हे काल स्वरूप, हे कालचक्र स्वरूप, हे सर्वदेवादि देवी, हे सर्व देवाधिपति परम पुरुष परमात्मा, मु तुमको नमस्कार पूर्वक ध्यान करुछि। यही मंत्र जप करी भगवान को स्तुति करने आवश्यक। ग्रह नक्षत्र और तारा मान रूप में भगवान जो आदि दैविक रूप प्रकाशित होउछि ताहा त्रिसंध्यारे उक्त मंत्र जप करुवा पुरुषंकर पाप नाश करिथाय। जो व्यक्ति प्रत्यह प्रातः मध्याह्न और सायं त्रिकाल परमात्मांकर एही आदि दैविक स्वरूप को चिंतन और चंदन करती तांकर सकल पाप तुरंत नष्ट हो जाए। यही थिला एही अध्यायर सुंदर वर्णना। आमे 28 नक्षत्र कथा एठारे सुनी पारले एवं तांकर अवस्थान मध्य जानी पारले। ठीक एहीपरि प्रत्येक अध्याय प्रत्येक स्कंध धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। फल सनातन धर्मर शास्त्रर महत्व और गुरुत्व को समस्ते अनुभव करें एवं आपण मानक एसबू शुणी किपरि लगुच ताहा निश्चित मतामत देवे। यह अध्याय शुणिथार भगवान आपणकर समस्त मंगल करंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।